Good morning, dear students. It is good to be here with you all again. And I am very happy to be with you all. Although we are facing difficulties in our life, but we still believe that our continuous efforts, patience, and positivity will sure enhance us to triumph over our problems. Dear students, a man without education is like a building without foundation. Therefore, education has great importance in our life. Education is an integral part of our life. Education is not only necessary for personal development, but it is also necessary for social developments. With this hope, we are connected on this online platform. So let's start our classes. Dear students, in the last class, we had read about integers. What is integers? Kinds of integers, positive numbers, negative numbers, zero, prime numbers, natural numbers, etc. And today we will solve question based on integers. Dear students, in exercise 1A, there are 17 questions. And first question is, arrange the following integers in ascending order. ये जो इंटीजर्स गिवन है उसको ascending order में अरेंज करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट कि all the negative integers are less than 0 and all the positive integers are greater than 0. According to this theme, we can solve this question. It means smallest number of this sequence is -9 and the greatest number of this sequence is 12. So ascending order when we arrange these integers in ascending order, we will write the smallest integer first, then second smallest integer on the second, and the third smallest integer on the third position. Similarly, the greatest integers on the last place. So in this given integers, -9 is smallest integers. So first we will write -9, and after that -7 is second smallest integers, and -5 is third smallest integers, and 0, I read about 0. 0 is neither negative nor positive integers. It means 0 is neutral number on the number lines. 0 is lies between all positive integers and negative integers. Right side of the zeros, 0 के दाहिने साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, एंड 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1, -2, -3. इट मीन्स zero is neither negative nor positive, and all the negative integers are less than 0 and all the positive integers are greater than 0. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से लेस ग्रेटर देन है और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से लेस देन है. इट मीन्स
here is 5 and 7. These two integers are positive and 5 is less than 12. 5 जो है वो 12 से लेस देन है, तो 0 के बाद 5 and after that the greatest integers, that is 12, will be written here. This is ascending form of the given integers. Is it clear to everyone? Okay. Next, write all the integers lying between. उस सारे इंटीजर्स को लिखना है जो -5 और 4 के बीच लाई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. 0 के दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 एंड 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6. It means in this given question write all the integers lying between -5 and 4. ये -5 और 4 के बीच कितने इंटीजर्स हैं? See here on the number lines, -5 is here and 4 is here. And between these two numbers, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4 numbers are lying. It means -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. These all integers are lying between -5 and 4. These all integers are lying between -5 and 4. According to this number line, first of all, we draw a number lines and represent all the integers that is asked for these questions. उस सारे integers को इस नंबर लाइंस पे लिखेंगे जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. These all integers lying between -4 and 5. It's clear to everyone? Okay. Next. Question number 3 is replace this box by greater than, less than or equal to so that the statement is true. ये जो बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स को ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन से रिप्लेस करेंगे जिससे कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. See here, -5 and -3, which is greater, -5 or -3? See here in this number line, -5 lies left side of -3. It means -5 is less than -3, and we can also say that -3 is greater than -5. -3 is greater than -5. It means -3 is greater than -5. 4 and 0. 4 and 0. We already told you that all positive integers are greater than 0. जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से क्या हैं? ग्रेटर हैं. Is it clear to everyone? Okay. Next देखिए, -5, -4. All negative integers are less than all positive integers. जितनी भी नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर से क्या है? लेस देन है. इट मींस -5 is less than 4. See here in the question number 4, circle the greater integer and write its successor. ये जो इंटीजर्स दिए हुए हैं इसमें से जो ग्रेटर इंटीजर्स होगा उसको सर्कल करना है और उसका सक्सेसर को लिखना है. ओके. सी हियर, ये जो 15 एंड -12 है इसमें से जो ग्रेटर इंटीजर होगा उसको सर्कल करेंगे. तो सबसे पहले 15 एंड -12 विच इज ग्रेटर? 15 और -12? Yes, 15 is greater. It means we already read that the
negative integers less than all the positive integers. It means greater integer is 15 and what is the successor of 15? 15 का सक्सेसर क्या होगा? तो 15 में 1 ऐड कर देंगे तो 15 प्लस 1 16. 16 इज सक्सेसर ऑफ 15. इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? यस. ओके, नेक्स्ट -4 and 7. -4 and 7 which is greater integers in this question. इस क्वेश्चन में ग्रेटर इंटीजर्स कौन सा है? -4 या 7? तो 7 is greater than -4 because all positive integers are greater than all negative integers. It means 7 is greater than -4. तो what is the successor of 7? 7 का सक्सेसर क्या होगा? 7 + 1 = 8. Okay, next is -14 and 25. Which is greater? -14 or 25? 25 is greater than -14. Question number B and question number C both have same case. दोनों का सेम कारण है. क्यों? क्योंकि one is negative integer and one is positive integer. It means positive integer is greater than negative integers. तो इसके बाद ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा? 25 एंड सक्सेसर इसका क्या होगा? 25 + 1 = 26. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 सर्कल द स्मॉलर इंटीजर्स. जस्ट उसका अपोजिट है. क्वेश्चन 4 का अपोजिट है. 5 में क्या है? सर्कल द स्मॉलर इंटीजर एंड राइट इट प्रीडिसेसर. और इसका प्रीडिसेसर लिखना है. प्रीडिसेसर में इसका जस्ट बिफोर, एक पहले वाली संख्या कौन सी होगी इसका? इट मीन्स -4 and -7 both are negative integers. -4 is negative integers and -7 is also negative integers. तो which is स्मॉलर इंटीजर्स? -4 और -7. जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करके बताए थे, नंबर लाइन पे -7 जो है वो -4 का लेफ्ट साइड है. इट मीन्स -7 इज लेस देन -4. इट मीन्स -7 इज स्मॉलर इंटीजर. तो इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? प्रीडिसेसर इट मीन्स -7. प्रीडिसेसर, सक्सेसर निकालने क्या कर रहे थे? 1 ऐड कर दे रहे थे. और प्रीडिसेसर निकालने क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे. तो -1 इट मीन्स माइनस क्या होगा? प्लस होता है, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे. तो 7 + 1 8. साइन किसका होगा? जो ग्रेटर होगा ना उसके सामने जो साइन होगा वो इसका क्या होगा? साइन होगा. तो -7 - 1 = -8. Okay, is it clear to everyone? Next, 2 and -3. Which is smaller, 2 or -3? -3 is smaller than 2 because all negative integers are less than all positive integers. जितनी भी negative integers है सारे positive integers से less than है. तो -3 is less than -2. इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा? -3 - 1. It means -4 is predecessor of -3. See here. Question number 6. Write 3 integers just preceding -4. 3 ऐसे इंटीजर्स का नाम लिखना है जो -4 से जस्ट पहले आता हो. सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बीच में क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 एंड लेफ्ट साइड 0 में क्या क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. -8 7 8. कि राइट 3 इंटीजर्स जस्ट प्रीसीडिंग -4. -4 से 3 पहले इंटीजर्स को लिखना है.
तो क्या बताए थे कि प्रीसीडिंग नंबर अगर लिखना होगा तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन पे, और अगर सक्सेडिंग नंबर लिखना होगा तो राइट साइड मूव करेंगे नंबर लाइन पे। किसके राइट साइड मूव करेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन नंबर होगा उसका। तो देखिए इस क्वेश्चन में गिवन नंबर कौन सा है? -4 है, और -4 से पहले 3 ऐसे नंबर को लिखना है जो उसके पहले आता हो। तो देखिए -4 से पहले 3 कौन सा ऐसा नंबर है? -5, -6, -7। तो इसका आंसर क्या होगा? -5, -6 एंड -7। एंड नेक्स्ट, राइट 2 इंटीजर्स जस्ट सक्सीडिंग -7। 2 ऐसे इंटीजर्स का नाम लिखना है जो -7 से जस्ट बाद आता हो। जैसे इसके लिए भी क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सॉरी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and left side -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। तो देखिए इस क्वेश्चन में 2 सक्सीडिंग नंबर लिखना है जो -7 के सक्सीडिंग हो। सॉरी, इस क्वेश्चन में 2 सक्सीडिंग नंबर लिखना है -7 का। इट मीन्स 2 succeeding numbers of -7, 2 succeeding numbers of -7। -7 का 2 सक्सीडिंग नंबर कौन सा होगा? तो सक्सीडिंग पूछेगा तो जो गिवन नंबर होगा तो उसके राइट साइड मूव करेंगे, और प्रीसीडिंग नंबर पूछेगा तो जो गिवन नंबर होगा उसका लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो सक्सीडिंग नंबर लिखना है -7 का, तो -7 का सक्सीडिंग क्या क्या होगा? -6 एंड -5। -6 एंड -5 आर सक्सीडिंग नंबर्स ऑफ -7। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इन द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। इस सारे नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना है। एब्सोल्यूट वैल्यू मींस होता क्या है? इट मींस ये जीरो से कितनी यूनिट के डिस्टेंस पर होता है नंबर लाइन पे, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें मॉड लगा देंगे। ये किसका साइन है? मॉड का साइन है, जो आप लोग हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये लगाने का मतलब क्या है कि इसमें जितनी भी निगेटिव नंबर दिया होगा सारा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इट मींस -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 4 का। और जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगा, वो खुद उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही होता है। सिर्फ जितना निगेटिव इंटीजर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू लिखना होगा उसमें क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 0। 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 7। -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? इसमें मॉड लगाकर 8। दैट्स ऑल फॉर टुडे।